So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 4 of our topic analytic functions and CR equations, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur University in mathematics. So, let's start our today's lecture. So, basically, today we are going to see the PYQs of NET and GATE exams. So, it is our question number 1. This question is basically asked in 2022 NET exam. So in this question, it is saying that let U be a bounded open set of C containing 0. So what is given to me? We have a set U which is a subset of C, and this U is basically bounded. It is given to me. Now, and it also contains U. So I can write down here that it is 0 belongs to U. Now, let F such that U to U be a holomorphic function with f of 0 is equals to 0. So it is given to me that we have a function f such that U to U, और यहाँ पे अगर मैं इनपुट में 0 डालता हूँ तो आउटपुट में भी मुझे 0 मिल जाता है, मीन्स इमेज ऑफ 0 is 0. Now let fn denote the composition of f done n times, that is this. Okay, so basically यहाँ पर हमें n क्या गिवन है? n belongs to natural number. So for our simplicity, let's suppose मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने n की वैल्यू 2 मान ली. For example, let's suppose n is 2. So in this case we get f square, which is nothing but f composition f. So while f dash denotes the derivative of f, which of the following statements are true? So सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, C. अगर मैं यहाँ पे अपने ऑप्शन नंबर बी को देखूं, इन दिस केस ये हमें क्या गिवन है, अगर मैंने अपने f की वैल्यू यहाँ रखी विच इज f2 ऑफ u, हमें इसकी वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, क्या ये सबसेट ऑफ u होगा? तो हमें क्या मालूम है, लेट्स सी. f2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, f2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर f composition f and over u. So this can be written as f of, it is f of u like this. Now what is the meaning of f of u basically? अगर मैं यहाँ देखूं तो हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है that f is our, basically u is our bounded, and here also this u is also bounded. So if this u is bounded, what is this u here? This u is nothing but the कोडोमेन. अगर हमारा कोडोमेन बाउंडेड है तो यानी कि अगर मैं f की इमेज देखूं अपने डोमेन के साथ, यानी कि f of u क्या होना चाहिए, it is the subset of codomain and this is bounded, so basically its subset is also will be the bounded. यानी कि जो हमारे पास f of u होगा it will be subset of u from here. तो अगर मैं देखता हूँ कि this f of u, जो इनपुट में हमारे पास f of u आएगा, अगर ये सबसेट ऑफ u है तो अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन में f को ऑपरेट कर दिया, so it becomes f of u will be subset of f of u, and clearly this f of u is subset of u, so it is also subset of u. So from here मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि this is basically subset of f of u and f of u is clearly subset of u, so it is subset of u. तो हमारे पास क्या आ गया कि जो f2u हम लेके चले थे, this is the subset of u. So yes, option number B is my correct option. Okay, so now let's solve the option number. Okay, so now let's solve the second option, C. Okay, so अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखूं तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, इट इज f2 और इसका मुझे डेरिवेशन करना है, एंड एट 0 पर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 0 पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी. सो लेट्स फाइंड आउट दिस. सी, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f2 का डेरिवेटिव. तो f2 का डेरिवेटिव कैसे निकाला जा सकता है, ओवर z. लेट्स सपोज कि हम यहाँ जनरल पॉइंट z की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर f composition f का होल डेरिवेटिव ओवर z. दिस कैन बी रिटन एज f of z एंड पूरे का डेरिवेटिव. दिस कैन बी रिटन एज f डैश f of z इंटू f डैश z, क्योंकि जो हमारे पास कंपोजिशन होता है उसका डेरिवेशन कुछ इस तरह से होता है. नाउ अगर मैंने यहाँ पर f2 डैश में 0 को पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स f डैश f of 0 इंटू f डैश 0.
नाउ अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें जीरो गिवन थी, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स एफ डैश जीरो इनटू एफ डैश जीरो. सो दिस इज एक्चुअली इट इज एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर. और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे क्या गिवन था, दिस इज एक्चुअली एफ स्क्वायर डैश, बिकॉज एन की वैल्यू जैसे यहाँ पर टू रखूंगा तो एन की वैल्यू टू रखने पर ये मुझे क्या मिल जाएगा, दिस बिकम्स एफ डैश जीरो का स्क्वायर एंड वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू. So option number A is also correct. Now let's solve this option number second. Okay, so let me erase this part. Okay, so now let's see. अगर मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखता हूँ, लेट सपोज इट इज अवर, ओके सो इट इज द मॉडुलस वैल्यू. तो अगर मैं देखूँ अपने इस ऑप्शन के बारे में, लेट सपोज ऑप्शन नंबर डी की हम लोग बात करते हैं. ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या कह रहा है कि अगर मैंने एफ डैश ऑफ जीरो निकाला और इसकी मैंने मॉडुलस वैल्यू ले ली तो ये इक्वल और लेस देन वन होना चाहिए. यानी कि एक तरह से मुझे ये बोल रहा है कि जो एफ डैश जीरो है ये हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए. क्या एफ डैश जीरो हमारे पास बाउंडेड होगा? तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर मुझे चेक करना है कि एफ डैश जीरो हमारे पास बाउंडेड है तो मैं कैसे कर सकता हूँ. ओके सी, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है कि एफ ऑफ जीरो की अगर मैं बात करूँ, इट इज गिवन टू मी, इट इज जीरो. Now if I calculate our f dash z, so what is our f dash z? f dash z ये हमारे पास क्या हो जाएगा, it is nothing but it is actually d by dz of our f of z. और एक्चुअली मुझे यहाँ पर ही z की वैल्यू जीरो पुट करके देखना है और फिर इसकी मॉडुलस वैल्यू हमें लेनी है. तो क्या हमारे पास ये इक्वल लेस देन वन आएगा? ओके देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन यूज सिंपली हियर द स्वार्ट्ज लीमा. व्हाट इज स्वार्ट्ज लीमा? लेट्स सी. जब कभी भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, और हमें गिवन है एफ ऑफ, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें मॉड एफ के बारे में पूछा जा रहा है. सो मॉड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू लेट सपोज हमें चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन वन माइनस मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड का स्क्वायर divided by 1 minus mod z square. Now what is this? This is called as the Schwarz lemma. Okay, so it is easily done by this Schwarz lemma. It is a tip for you, means you can note down this trick. Basically this is called the Schwarz lemma. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जैसे ही मैंने z की वैल्यू जीरो पुट करी तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज f डैश जीरो इज इक्वल लेस देन वन माइनस f ऑफ जीरो की मॉडुलस वैल्यू स्क्वायर divided by 1 minus 0 square. So this value is basically, it becomes 1 minus f of 0 is 0, so 0 square upon 1 minus 0. So it is simply 1 by 1, which means 1. So we can write down here that f dash 0 modulus value is equal or less than 1. So yes, our fourth option is also correct, which means D option is also correct. Now let's see option number D also. Okay, so now let's solve this option number C. Sorry, yes. Now what is option number C? The sequence f dash zero की पावर n, और मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक सीक्वेंस ले लिया है, इट इज अ बाउंडेड. क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है. जैसे मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो ये हो गया हमारे पास f डैश जीरो और इस पूरे का स्क्वायर, बेसिकली f डैश जीरो का स्क्वायर. और मुझे ये प्रूफ करना है क्या इससे बनने वाला सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड होगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंडेड, कि अगर मैंने इस पूरी वैल्यू को किसी एक नंबर से छोटा दिखा दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे क्या गिवन है f डैश जीरो और इसका मैंने किया यहाँ पे स्क्वायर. सो दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या था हमारे पास, इट इज f डैश जीरो मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल लेस देन वन. अगर मैंने इस वैल्यू को बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, f डैश जीरो, क्योंकि स्क्वायर करने पर मॉडुलस वैल्यू हट जाएगी. सो दिस बिकम्स इक्वल लेस देन वन बिकॉज वन का स्क्वायर वन ही होगा. सो नाउ लेट्स सी,
Basically this function is less than 1, so which means that this function is also bounded. So yes, option number C is also correct. So the correct options of this question are A, B, C and D are my correct options. So all options are correct in this question. This question comes in 2012, sorry, 2022 in that exam. Okay, so now let's solve this next question. Basically this question has been asked in 2022 net exam, and in this question it is given that for a positive integer n, means हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर n गिवन है, लेट एफ एन डिनोट द nth डेरिवेटिव. सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, वी हैव टेकन दिस वैल्यू n. लेट सपोज मैंने n की वैल्यू यहाँ पर फॉर आवर सिंप्लिसिटी वी कैन टेक n इज इक्वल्स टू सपोज 2. अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली, या फिर लेट सपोज हम इसको जनरल के लिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है. लेट्स सी. So f and denote the nth derivative of the function f. Suppose that entire function f satisfies this relation. Okay, so it is given to me that f का second order derivative plus f is equals to basically 0. So what is the meaning of second order derivative? It means f का अगर मैं 2 बार डेरिवेटिव करूं और उसमें f को ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ पे 0 मिलता है. Now which of the following is correct? तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर ए की पहले हम बात कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या गिवन है, लेट्स सी. इसमें कह रहा है कि f का nth डेरिवेटिव एट 0 की अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस बनाऊं तो वो कन्वर्जेंट होगी. क्या ये ट्रू है? सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं. सी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर एनी एनालिटिक फंक्शन और मींस एंटायर फंक्शन. बिकॉज f इज एंटायर फंक्शन, सो लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे f की वैल्यू साइन z ले ली, बिकॉज साइन z इज एंटायर फंक्शन, और अगर मैं यहाँ पर इसका 2 टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसका 1 टाइम डेरिवेटिव किया तो ये हो जाएगा हमारे पास cos z, और अगर मैंने इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया सो दिस बिकम्स हियर माइनस साइन z. और अगर मैं क्लियरली देखूं तो क्या ये प्रॉपर्टी इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होती है? सो 2 times derivative minus sin z plus f यानी कि plus sin z, so it will be 0. So yes, we can use our this function sin z here. So f double derivative it is minus sin z. Now अगर मैंने इस तरह से let's suppose f का थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या हो जाएगा, it is minus cos z. अगेन अगर मैंने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला so this becomes it is sin z and so on. इस तरह से मैं इसको निकाल सकता हूँ. बट मुझे किस फंक्शन के लिए चाहिए, मुझे चाहिए 0.0 के लिए. तो अगर मैं 0 पर इसको चेक करूँ, मीन्स 0 तो डेरिवेटिव से अगर मैं चेक करूँ तो एट 0 साइन 0 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी. एट 0 f डैश 0 की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है. दिस बिकम्स 0. दिस विल गिव अस एक्चुअली इट इज -1 एंड देन दिस विल गिव अस अगेन 0. तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, लेट्स सी, इट इज द सेकेंड डेरिवेटिव. ओके, so if I have chosen sine, sine becomes cos, cos becomes minus sine, and minus sine will become minus of cos actually. Okay, so let me see once here, n should be equal or greater than 1. Okay, क्या मुझसे यहाँ पर कोई चीज़ छूट रहा है? लेट मी चेक वंस अगेन. हमने यहाँ पे निकाला f का nth डेरिवेटिव एट 0. तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे nth डेरिवेटिव चाहिए था. तो nth डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकेंड डेरिवेटिव किया, थर्ड डेरिवेटिव किया, फोर्थ डेरिवेटिव किया एंड सो ऑन. इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव निकालते चले गए. अब हमें जिस पॉइंट पर चाहिए, हमें ओ पॉइंट 0 पॉइंट पे चाहिए था, तो मैंने इन सब पॉइंट्स पर 0 रखा. तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा सो cos 0 बिकम्स 1, sin 0 इट इज बेसिकली 0 एंड अगेन इट इज cos of z. सो इट इज cos z विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर देखूँ so this becomes -1. okay, so it is no doubt it is -1. चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स निकाल के दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे बात किया कि मैंने इसका फिफ्थ डेरिवेटिव भी निकाला. तो फिफ्थ डेरिवेटिव साइन का हो जाएगा cos z, और 0 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1. अगेन अगर मैंने सिक्स्थ डेरिवेटिव निकाला
सो दिस सिक्स डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन जेड एंड दिस वैल्यू विल बी जीरो. अगर मैंने सेवेंथ डेरिवेटिव निकाला तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉस जेड एंड दिस विल गिव अस -1. ओके, नाउ लेट्स सी. कोई भी सीक्वेंस, लेट्स सपोज दिस सीक्वेंस इज fn एट 0 जहां पर n इक्वल ग्रेटर देन 1 है. तो दिस सीक्वेंस कब हमारे पास कन्वर्जेंट होती है? जब इसके पास एक यूनिक लिमिट आ जाए. इट शुड नीड टू बी अ यूनिक लिमिट और ये हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए. यूनिक लिमिट प्लस बाउंडेड विच मीन्स इट इज कन्वर्जेंट. सो क्या यहाँ पर हमें यूनिक लिमिट मिल रही है? देखिए, एक बार हमें 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर -1 मिल गया. इट इज नॉट यूनिक. सो विच एम्प्लाइज दैट इट इज नॉट कन्वर्जेंट. सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर बी में हमसे कह रहा है कि अगर मैं f का nth डेरिवेटिव एट 0, जो हमारे पास यहाँ से ही जो हमने सीक्वेंस लिया था, अगर मैं उसको n टेंस टू इन्फिनिटी पर देखूं, यानी कि उसकी लिमिट निकालता हूं, तो उसकी वैल्यू 1 आती है. तो ये तो उसकी कन्वर्जिंग वैल्यू है. बट मैं यहाँ देख सकता हूँ कि उसकी कन्वर्जिंग वैल्यू फिक्स नहीं है. हमें कभी 0 मिल रहा है, कभी 1 मिल रहा है, कभी -1. सो n टेंस टू इन्फिनिटी पर हमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है. वी डू नॉट गेट एनी यूनिक वैल्यू. दैट्स वाई, बिकॉज मैं कह सकता हूँ वी डू नॉट गेट नॉट यूनिक वैल्यू. क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 पर नहीं जाएगी. सेम हियर आल्सो. n टेंस टू इन्फिनिटी पर हमें -1 मिल रहा है. नो, हमें तो 0, 1, -1 कुछ भी मिल सकता है. सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी वैसे ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. एंड लेट्स सपोज क्यों ये हमारे पास करेक्ट है. सो लेट्स सी. अगर मैंने f nth डेरिवेटिव एट 0 का मॉडुलस वैल्यू लिया. नाउ व्हाट इज द मॉडुलस वैल्यू? सी, मुझे यहाँ पे इरेज करना होगा इसे. देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव टेकन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी टर्म. 0 का अगर मैं मॉडुलस वैल्यू लेता हूँ, यानी कि मॉड 0 इट इज 0, अगेन मॉड 1 इट इज 1, मॉड 0 विल बी 0, mod of -1 will be 1, again it is mod 0 will be 0, this value also be 1, this value 0 and this value 1. तो कह रहा है कि क्या हमारे पास, अगर मैं इन वैल्यूज में देखूं अपने मॉडुलस वैल्यूज में से, तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस बना, क्या इस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा? डेफिनेटली. अगर मैंने यहाँ पर 0 का एक सीक्वेंस बना दिया, मीन्स दिस 0, 0, इन सब जीरोस को मैंने लेकर के एक सब सीक्वेंस बना दिया, या फिर इन जितने भी 1 हमारे पास आ रहे हैं, इन सभी 1 का हमने एक सीक्वेंस बना दिया. सो दिस विल बी द सब सीक्वेंस एंड दिस इज ऑल्सो द सब सीक्वेंस. सो यस, जो कि हमारे पास 1 पे कन्वर्ज कर रहा है और ये हमारे पास 0 पे कन्वर्ज कर रहा है. सो डी ऑप्शन इज माई ओनली करेक्ट ऑप्शन इन दिस question. Okay, now let's solve this question. This question basically comes in 2016 at exam and it is a very easy question. See, हमें यहाँ पे क्या given है? In this question it is given to me, suppose f and g are entire functions and g is not equals to 0 for all z belongs to c. और हमें यहाँ पे एक condition भी given है कि जो हमारे पास f of z होगा ये हमेशा g of z से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए. Then we conclude that the first option. Now, चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि f of z is not equals to 0 for all z belongs to c. यानी कि f of z कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि f of z हमारे पास 0 है, तो क्या हो जाएगा? क्या f of z हमारे पास 0 नहीं हो सकता? लेट्स सी. अगर मैंने f of z को 0 रखा तो ये रिलेशन हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास 0 is always equal or less than z. क्या हमारे पास ऐसा कोई g of z एग्जिस्ट करेगा जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए? डेफिनेटली. लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे g of z को 1 ले लिया. क्लियरली 0 इज इक्वल लेस देन 1, यानी कि अगर मैं f of z को 0 पुट कर लेता हूँ तब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि दिस इज इनकरेक्ट. f of z को मैं 0 भी ले सकता हूँ. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर 2? ऑप्शन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि f इज अ कांस्टेंट फंक्शन. क्या f को हमेशा कांस्टेंट फंक्शन ही होना चाहिए? लेट्स सपोज कि मैंने f को क्या मान लिया, f को मैंने कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन मान लिया. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैंने f को क्या माना, z, और g ऑफ z को मैंने क्या मान लिया, g ऑफ z को मान लिया मैंने z plus 1. देन इट इज क्लियर दैट z इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन z plus 1. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये तो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि
ऐसा जरूरी नहीं है कि z हमेशा मीन्स f हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए. वी कैन चूज नॉन कांस्टेंट आल्सो. इट इज आल्सो इनकरेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? ऑप्शन नंबर सी में हमसे क्या कह रहा है कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0. कि अगर मैं f ऑफ 0 की बात करूं तो हमेशा वो हमारे पास 0 आना चाहिए. ओके, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0. और हमें यहाँ पे एक चीज और गिवन था. लेट्स सी, हमें यहाँ पे गिवन है कि f और g कैसे फंक्शंस हैं. दे आर इंटायर फंक्शंस. f एंड g आर इंटायर फंक्शंस. सो क्यों ना, अगर मैंने लेट सपोज f ऑफ z को क्या मान लिया, एक इंटायर फंक्शन मान लिया जो कि 1 है. 1 इज इंटायर फंक्शन क्लियरली. f ऑफ z को मैंने क्या मान लिया, 1. And g is also entire function, so I can choose g of z is equals to 2. And clearly this property has been satisfied because 1 is always equal or less than 2. तो मैं इन दोनों को ये ले सकता हूँ. एंड क्लियरली अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो डिस्कार्ड. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी? चलिए ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे. तो ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या बोल रहा है, हमें कह रहा है कि f ऑफ z इज इक्वल्स टू c टाइम्स g ऑफ z, वेयर c इज एनी complex in constant. Okay, so now let's see option number D. So सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लेट्स सी. हमें गिवन है कि f एंड g ये दोनों फंक्शंस हमारे पास इंटायर फंक्शंस हैं. और हमने पढ़ा है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, f अपॉन g निकालूं, मीन्स जहाँ पर g हमारे पास डेफिनेटली नॉन जीरो होगा, तो f अपॉन g इज ऑल्सो इंटायर फंक्शन विच इज द एल्जेब्रा ऑफ इंटायर फंक्शंस. अगर एफ जी इंटायर है तो एफ अपॉन जी भी इंटायर फंक्शन होगा. ओके, और फिर यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, फिर हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एफ अपॉन जी के बारे में जो कि एक इंटायर फंक्शन है, और क्या हमारे पास ये बाउंडेड होगा, एफ एंड जी आर बाउंडेड फंक्शंस और नॉट. ओके, सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर मेरे पास एफ और जी दोनों ही हमारे पास इंटायर फंक्शंस गिवन थे, और तो हम ये निकाल सकते हैं कि f अपॉन जी भी हमारे पास इंटायर फंक्शन होगा. अच्छा, मैं सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि हम किस ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स मैं यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगा रहा हूँ. अप्रोच ये है, देखिए ट्रिक नंबर 1 मैं आपको लिखा देता हूँ कि जब कभी भी आपके पास एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, नॉन कांस्टेंट प्लस इंटायर. अगर मेरे पास एक फंक्शन f ऑफ z है जो कि नॉन कांस्टेंट है और इंटायर फंक्शन है, विच एम्प्लाइज दैट कि जो f ऑफ z होगा इज अनबाउंडेड, तो वो हमेशा हमारे पास अनबाउंडेड होगा. ट्रिक नंबर 2 क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक बाउंडेड फंक्शन आ जाए प्लस इंटायर फंक्शन आ जाए, अगर वो बाउंडेड है प्लस इंटायर है, विच एम्प्लाइज दैट कि जो f ऑफ z होगा इज अ कांस्टेंट फंक्शन. सो बेसिकली यहाँ पर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को लगाना चाह रहा हूँ. नाउ लेट्स सी, हमें क्या गिवन है, f इज अ इंटायर फंक्शन. मैं मीन्स मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि f हमारे पास एक इंटायर फंक्शन तो आ गया है. अब हमें ये क्लियर करना है क्या f हमारे पास कांस्टेंट होगा, मीन्स क्या मैं नॉन कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जो कि हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो f है वो कांस्टेंट भी ले सकता हूँ, नॉन कांस्टेंट भी ले सकता हूँ. तो ये प्रॉपर्टी तो मैं नहीं लगाने वाला, हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे. क्या ये हमारे पास f अपॉन जी बाउंडेड होगा, इज f अपॉन जी बाउंडेड. सो लेट्स सी अबाउट दिस कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. अगर मैं इस कंडीशन को यूज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सी हियर इट इज गिवन टू मी दैट mod of f of z is equal or less than mod of g of z. ओके, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, mod of f upon g of z is equal or less than 1. एंड डेफिनेटली बिकॉज f upon g किसी फिक्स वैल्यू से कम आ गया, which implies that कि f upon g is bounded. अब क्योंकि f upon g हमारे पास एंटायर फंक्शन है, f upon g हमारे पास बाउंडेड आ गया, which implies that f upon g is constant. अगर f upon g हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेट्स सपोज f upon g को मैंने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट c मान लिया, सो आई कैन राइट डाउन हियर f is equals to c times g, so which means yes, option number D is my correct option because it is given that f is equals to c times g. So the D option is my correct option in this question. Okay, so now let's solve this question number 4. This question asked in 2013 net exam. In this question it is given that let f be a non-constant holomorphic function in the unit disk this. Okay,
सो मीन्स हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट सी, सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है हमें, नॉन कांस्टेंट, एंड देन इट इज होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक मीन्स एनालिटिक फंक्शंस। तो अभी जैसे कि मैंने ट्रिक नंबर 1 बताया था, व्हाट इज अवर ट्रिक, ट्रिक नंबर 1 में हमने क्या देखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन आ जाए प्लस एनालिटिक फंक्शन आ जाए, मीन्स इट इज एंटायर फंक्शन आ जाए, विच एम्प्लाइज दैट कि जो भी हमारे पास एफ ऑफ जेड होगा वो हमेशा अनबाउंडेड होगा। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि नॉन कांस्टेंट गिवन था क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को लगा रहा हूँ। ओके, सो सिंस इट इज अ होलोमॉर्फिक फंक्शन इन द यूनिट डिस्क दिस विच इज mod of z लेस देन 1, विच मीन्स ये कि हमारे पास एक ओपन डिस्क गिवन है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, इट इज गिवन लाइक दिस एंड mod of z इज लेस देन 1, यानी कि मैं बाउंड्री पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री पॉइंट्स, इट इज अ ओपन डिस्क गिवन टू मी। यहाँ पर mod of z लेस देन 1 की बात हो रही है, सो इट इज 1 and this point is -1. Okay, then such that f of 0 is equals to 1, तो मुझे कंडीशन क्या गिवन है, f of 0 हमारे पास 1 होनी चाहिए, then it is necessarily true that, okay, so हमें क्या चाहिए, there are infinitely many points in z, f is bounded, मीन्स हमें f की यहाँ पे प्रॉपर्टीज बतानी। okay, so now let's do this question with a shortcut trick. okay, so let's suppose कि मैंने यहाँ पर क्या माना अपने f को, मुझे f क्या मानना चाहिए, मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कांस्टेंट हो और ये होलोमॉर्फिक भी होना चाहिए हमारे इस डिस्क में, लेट्स सपोज, और उसके साथ साथ ये f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो मुझे एक ऐसा f सोचना है। तो अगर मैंने लेट्स सपोज f की वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूँ, देखिए मैं इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ कि मैं f की वैल्यू हमेशा क्या क्या ले सकता हूँ। मैं ले सकता हूँ e पावर z विच इज एनालिटिक फंक्शन विच इज नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन। वी कैन टेक बेसिकली sin z which is also non-constant analytic function. We can choose cos z, which is also non-constant is analytic function. We can choose z, which is also non-constant polynomial entire function. We can choose z plus 1. बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया है, ये हम प्रायोरिटी मीन्स हम यहाँ पर जिस तरह की हमको प्रायोरिटी होगी फंक्शंस की, हम उसको यूज करेंगे, और हम 90% क्वेश्चंस में e पावर z का यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, अगर मैं यहाँ पे e पावर z का यूज करूँ तो क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, लेट्स सी। अगर मैंने यहाँ पर f ऑफ 0 रखा, सो इट बिकम्स e पावर 0 विच इज 1, यस, सो आई कैन यूज अवर e पावर z हियर बिकॉज ये हमारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है एंड विच इज नॉन कॉन्स्टेंट ऑल्सो। सो अगर मैं यहाँ देखूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे, या फिर मैं अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेता हूँ, इट इज ईजी। इसमें कह रहा है कि f इज बाउंडेड, तो बाउंडेड के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस वैल्यू चेक करेंगे f ऑफ z का। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास e पावर z, इट कैन बी रिटन एज e पावर x प्लस आयोटा y, सो दिस इज नथिंग बट e पावर x इंटू e पावर आयोटा y, एंड वी नो दैट e पावर आयोटा y की वैल्यू मॉडुलस वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हो गया मेरे पास मॉडुलस वैल्यू ऑफ e पावर x, एंड e पावर x इज अ अनबाउंडेड function. Clearly e power x is a unbounded function. Since it is unbounded function, so which implies that f is also unbounded. Yes, and clearly अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ना सॉल्व भी करूँ तभी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ जो e पावर z है ये हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन होता है एंड इट इज ऑल्सो इंटायर फंक्शन, सो क्लियरली इट इज अन unbounded. So by this trick number 1 we can easily solve this, so it is unbounded, so option number 2 is incorrect. Okay, so now let me erase this part. Okay, so now let's solve the next option. देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, f is a rational function. So now I have to write down what is the meaning of a rational function. First of all, in complex analysis rational function का मतलब क्या होता है। okay, so इसमें लिखिए any entire function is called rational function is called rational function if at z is equals to infinity it has removable singularity. अब जिसको यहाँ पर सिंगुलैरिटी का मतलब नहीं मालूम है
वो मेरे सिंगुलैरिटी वाले प्लेलिस्ट में जा करके मैंने टोटल सिंगुलैरिटी उस पर पढ़ा रखी है। साथ साथ मैंने उस 2003 से 2025 तक के सभी क्वेश्चंस भी सिंगुलैरिटी करा दिया है मैंने, और आप उसकी प्लेलिस्ट पर जाके वहाँ से सिंगुलैरिटी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स चेक दिस ऑप्शन नंबर 4। अगर मैं अपने फंक्शन को देखूँ तो हमारे पास फंक्शन क्या था, चलिए ऑप्शन नंबर 4 को हम चेक करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर चेक किया एट z टेंस टू इन्फिनिटी, क्या z टेंस टू इन्फिनिटी पर हमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मिलेगी? अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी मुझे मिल जाती है तब मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एंटायर फंक्शन है वो एक रेशनल फंक्शन होगा। सो लेट्स चेक कि जैसे ही मैंने अपनी e पावर z को यहाँ रखा फंक्शन को, तो ये तो हमें इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, बट हमें क्या चाहिए? रिमूवेबल। रिमूवेबल मुझे कब मिल सकता है? जब हमारे पास लिमिट वैल्यू फाइनाइट आ जाए, बट इट इज नॉट फाइनाइट, it is infinite. So clearly this option is incorrect because we do not get here, it is not removable singularity, it is not a removable singularity. That's why our entire function is not a rational function. Okay, so now let's solve this option number 2. Let me erase this part so that we can write. Okay, so now let's see the other options. देखिए हमसे अब क्या बोल रहा है कि there are at most finitely many points z in the unit disk such that modulus value of f of z is equals to 1. ओके, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि अगर मैं अपने मॉडुलस वैल्यू को निकालूं, मीन्स एफ ऑफ जेड की मैं मॉडुलस वैल्यू निकालता हूँ और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ई पावर जेड इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज नथिंग बट e पावर x इंटू ई पावर आयोटा वाई इक्वल्स टू 1। ई पावर आयोटा वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इट इज actually e power x is equals to 1. So this can be written as basically e power x को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? It can be written as it is 2 pi iota n. So it can be written as basically x is equals to 2 pi iota n where n belongs to integers. इसे सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू यहाँ पर ये मिल जाती है। तो अगर मैं देखूं तो n क्या है हमारे पास? n तो इंटीजर से आ रहा है, सो दैट्स वाई हमें क्या फाइनाइटली पॉइंट्स मिलेंगे? नो, बिकॉज ऑफ दिस n these values are our infinite. यहाँ जो भी मैं x, y लेके चलूंगा, जो भी पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे बिकॉज ऑफ दिस x, क्योंकि x हमारे पास इंटीजर से आएंगे, सो दीज पॉइंट्स विल बी अवर इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो क्लियरली द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में मेरे पास कह रहा था फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ z, सो इट इज इनकरेक्ट। एंड फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स दैट सच दैट दिस प्रॉपर्टी, यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज a is my correct option in this question. Okay, so now let's solve option number question number 5. Basically in this question it is given that let f be a non-constant entire function. Okay, so it is given that it is a non-constant plus entire function, यानी कि यहाँ पर मैं जो भी f of z लूंगा, so wait students, yes, so in this case whatever f of z we will choose, this should be non-constant, so I can choose e power z, or I can choose z, I can choose z plus 1, I can choose basically sin z, I can choose cos z. Basically these are the cases. Then हमारे पास क्या given है? Which of the following properties is possible for f for each z belongs to c? तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एफ ऑफ जेड को ई पावर जेड सपोज कर लिया, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? दिस कैन बी रिटन एज ई पावर एक्स इंटू ई पावर आयोटा वाई, सो दिस इज नथिंग बट ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस आयोटा ई पावर एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा हमारे पास? द रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड विल बी ई पावर एक्स कॉस एक्स, एंड बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा? दिस इज ई पावर वाई sin y, and clearly these two are not equal, that's why option number 1 is incorrect. What about option number b? अगर मैं option number b की बात करूं तो option number b में कह रहा है कि अगर मैं f of z का मॉडुलस वैल्यू लूं, okay, if I have taken the mod of f of z,
तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए। क्या ये ट्रू है? लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर e पावर z लिया, सो इट इज लेस देन मीन्स क्या ये मुझे लेस देन 1 मिलेगा? ओके, सो लेट मी चेक दिस वैल्यू। ओके, सो अगर मैंने क्या निकाला f ऑफ z की मॉडुलस वैल्यू, दिस इज e पावर z, दिस कैन बी रिटन एज e power x into e power iota y की मॉडुलस वैल्यू, this value goes to 1, so it becomes e power x, and clearly e power x is not always less than 1 for all x, it is not true, क्योंकि हमें मालूम है e power x कैसा होगा। अगर मैं देखूं कि जैसे ही x हमारे पास इन्फिनिटी पर जाता है, लेट मी सी द ग्राफ, अगर x हमारे पास इन्फिनिटी पर टेंड करेगा तो e पावर x भी इन्फिनिटी पर जाएगा, यानी कि एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। x अगर मेरे पास 0 पर टेंड करेगा तो e पावर x भी हमारे पास क्या हो जाता है? इट इज एक्चुअली 1। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है e पावर x का, एंड क्लियरली e पावर x का ग्राफ मुझे इस तरह से मिल रहा है, यानी कि मुझे ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि ग्रेटर देन 1 है e पावर x के लिए, सो इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज, सो क्लियरली दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? देखिए ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं हियर, so ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z is less than 0. So what is the imaginary part? Let's see in this case. अगर मैं f of z के imaginary part की बात करता हूँ, so this is actually here, this is our imaginary part. So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे e power y into cos y। क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा for all value of y? Incorrect, because हमें ऐसे y भी मिलेंगे जिसके लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, तो ये क्या बन जाएगा? e पावर 0 into cos 0 में sin 0, so it becomes 1 into 0, यानी कि 1, sorry it is actually 0, yes it becomes 1 into 0, okay yes, see students, so basically हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 into 0, which means it is actually 0, and 0 is not less than 0, so our third option is also incorrect, so the fourth one is correct। fourth one क्या कह रहा है इसको हम देख भी लेते हैं। इसमें कह रहा है कि f of z हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, it should be नॉन जीरो। सो लेट्स सपोज कि अगर मैंने f ऑफ z को 0 लिया तो क्या ही हो जाएगा? अगर मैंने f ऑफ z को 0 लिया तो ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, और हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि f ऑफ z शुड बी अ नॉन कांस्टेंट वैल्यू, तो मैंने f ऑफ z को मैं 0 नहीं ले सकता, सो f ऑफ z शुड बी नॉट 0, सो ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज डी इज माय करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Okay, so now let's solve this question number 6. This question has been asked in 2011 NET exam, and in this question it is given that let f be an analytic function if real part of f is bounded. Okay, so देखिए इसके लिए भी मुझे आपको एक ट्रिक बताना है कि हमारे पास एक ट्रिक होता है। देखिए कैसा शॉर्ट ट्रिक है ये। सपोज अगर मैं बात करूं कि f ऑफ z अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक, अगर हमारे पास f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है एंड ईदर u और v इज बाउंडेड, u और v में से कोई एक अगर बाउंडेड दे दिया जाए, देन द होल f ऑफ z इज बाउंडेड। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास f ऑफ z एनालिटिक है और u और v में से कोई एक भी अगर बाउंडेड होगा तो पूरा पूरा f मैं क्या लेके चलूंगा? बाउंडेड लेके चलता हूँ। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अब मुझे क्या गिवन है? रियल पार्ट ऑफ f। सबसे पहले मैं f को क्या मान लेता हूँ? f को मान लेता हूँ मैं u प्लस आयोटा v। तो जो रियल पार्ट ऑफ f है वो हो जाएगा मेरे पास u, और u हमारे पास गिवन है बाउंडेड, एंड यहाँ पर f भी हमारे क्या गिवन है? इंटायर फंक्शन। सो f इज अ इंटायर फंक्शन विच मीन्स इट इज एनालिटिक, डेफिनेटली इट इज अ इंटायर फंक्शन। तो अगर f इंटायर फंक्शन है और u हमारे पास बाउंडेड है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो f हमारे पास होगा f ऑफ z, ये हो जाएगा इंटायर फंक्शन प्लस बाउंडेड फंक्शन। और हमने ऊपर के ट्रिक नंबर 2 में क्या देखा था? लेट मी सी वंस, आपको मैं दिखाता हूँ कि ऊपर जो हमने ट्रिक पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन ऐसा आ जाए जो कि इंटायर है और बाउंडेड है, तो वो फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सी, सो इन दिस केस हमें क्या गिवन है? हमें इंटायर फंक्शन गिवन है और बाउंडेड गिवन है।
which implies that basically this implies that कि जो f of z होगा वो हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन आना चाहिए. क्लियर? यहां से तो हम एक कंक्लूजन इसको निकाल सकते हैं. तो अगर f ऑफ z हमारे पास कांस्टेंट है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि f ऑफ z हमारे पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट नंबर 2 आ गया, तो इस केस में हमारे कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं? लेट मी सी द ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ f इज कांस्टेंट, इट इज ट्रू. व्हाई? क्योंकि अगर मैं देखूं 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस आयोटा टाइम्स 0, एंड दिस 0 is a imaginary part of f which is a constant number. So yes, option number A is true. And f of z is constant. Yes, it is also true. क्या मैं कह सकता हूं कि f is identically 0? क्या f हमेशा 0 ही होगा? It is incorrect. Why? क्योंकि f को मैं 2 भी ले सकता हूं, f को मैं 3 भी ले सकता हूं, f को मैं 4 कुछ भी ले सकता हूं. ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा 0 ही मुझे लेना पड़ेगा. It is incorrect. f dash is a non-zero constant. Means f dash is a non-zero constant. Is it true? Because f is a constant, so clearly अगर मैं f dash निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0. So it is incorrect. It is a 0 और मुझे given it is non-zero. So the correct option in this question will be A and B are my correct answer in this question. Okay. Thanks.